Hello, students. As you know that we have started a series in different subjects. So today I'm going to give you a basic introduction of government. So this video is not going to dig deeper, but it is just surface level information you will get of some basic ideas that how can you improve. So this is one of the basic video, and afterwards we will dig deeper and you will going to understand judiciary, legislation, everything. There is no need to worry. So today the topic we are taking is called government. When you talk about government, what definition of government? So government, you can say it is a kind of institution which is run by some group of people, those who decide for a country, those who make some laws, and later they amend these laws for the benefit of the country. So here a difference is given that the government is a system of a social work under which the right they have got right to make laws, and they have the right to enforce these laws in a society to make it a better. गवर्नमेंट के जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के कि वो कैसे वहाँ पर रूल करेगी। सो दैट्स बेसिक वाला फीचर क्या है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइडिंग अ लीडरशिप। एक कंट्री आपको मालूम है कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, एक सबसे बड़ी जो समस्या है कहीं पर भी आप देखेंगे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री और इन एनी कंट्री to become success or not, there are a lot of countries, some got have good geographical features, some have got bad geographical features, but the common thing about any country which became very successful, for example US or Singapore, those who became very successful was the leader. The leader could change the destiny. So government provides a leadership. They maintain order with the help of police and different authorities. Public services are there and security, different kind of things we get. A government can be different kind of. A group of people could be placed by different methods. Is sometimes like in Roman Empire, when Roman Empire was there, we used to have oligarchy. What is oligarchy? Oligarchy is a simple term in which some of the people, most influential people or some noble kind of people were ruling the country, and it was a group of, let's say that in Roman 40 people were there. That was called oligarchy. This come from a, these were all were nobles and they started ruling the country. उसके अलावा monarchy simply you are understood. India was under a great period of monarchy. एक बड़ा मोनार्की रूल था हमारे यहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा कंट्री में अ किंग इज़ देयर, अ क्वीन इज़ देयर, एंड कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ हायरार्की एंड ऑल दे कंटिन्यू टू रूल. We need to understand that afterwards we have got republic. What is republic? Republic is the supreme head of a country. It could be directly or indirectly chosen. Then we talk about democracy. Now India has become a democracy, so we'll have a deeper conversation with what democracy looks like and what is democracy. But before moving further, we have a question that what are the roles of government? So when we talk about the roles of government, any government has a role to promote economic and efficient growth. So this strengthen the institutions, there's a fair distribution of income, taxation, all these things comes under the role of government. Later on, when we move further, we need to have understanding some forms of government. तो मैंने I have taken 3 forms of government जो कि आप लोग बेसिक 6, 7th, 8th में इनका इस्तेमाल होता है. तो पहला फॉर्म जो है वो डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है, देयर इज अ वन पर्सन कॉल्ड अ लीडर. अब इट हैज कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, क्या पता वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आ जाए. दैट पर्सन मे कम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, वहाँ पे मिलिट्री coup हो गया हो, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया हो, दैट इज मिलिट्री बैकग्राउंड से आ गया हो, जैसे ईदी अमीन या डिफरेंट जनरेशन, जैसे म्यांमार है, म्यांमार में इस समय पर एक मिलिट्री रूल चल रहा है. तो डिफरेंट कंट्रीज में हम देखते हैं वो लीडर चाहे तो सिविल बैकग्राउंड से आ जाए, और इसमें क्या होता है कंटिन्यूअसली आप आते हो और विद द हेल्प ऑफ लेट्स से दैट सिविल बैकग्राउंड से आप आए, आपने पॉलिटिक्स का रास्ता चूज किया और फिर आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अमेंड करके आपने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपनी आपने सरकार बना ली. एक तरीका ये होता है, और फिर लेटर ऑन आपने पूरी पावर अपने पास कंसंट्रेट कर ली. इसमें कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, या इलेक्शन होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ वो किस लिए होता है, जस्ट टू शो इट इज़ नॉट इन रियल. ये कभी भी बेटा रियल फॉर्म में नहीं होगा, ये बस शो करने के लिए होता है कि भैया हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, बट इट इज़ नेवर गोइंग टू बी डन. आफ्टर बात की जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट मोनार्की, मोनार्की में देयर इज अ रूल ऑफ अ किंग, देयर इज अ रूल ऑफ किंग. अब इसमें किंग होगा, सिंपल सी बात है. आज भी आप सोचेंगे, आज भी आपके मिडल ईस्ट ऑफ कंट्री सऊदी अरेबिया है, दुबई है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस इज राइट नाउ मोहम्मद बिन सलमान इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया. So these are rule of kings. So kings are basically ruling in the monarchy. No elections are being done. No elections are being done, and on the basis of blood, on the basis of bloodline,
the particular person is being chosen that he or she is fit to rule or not. Last is democracy. So today we will be digging deeper and understanding most of the basic concepts about democracy. फिर इसके नेक्स्ट में हम लोग को डीप करें. देन जब डेमोक्रेसी बात कर ले, डेमोक्रेसी क्या है? तो अब्राहम लिंकन की आपने काफ़ी फेमस है, टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, आपने सुना होगा इसको. सो अब्राहम लिंकन टोल्ड दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज सराउंडेड अराउंड द पीपल. बट इसे आपने और बेसिक या बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको लर्न करनी हो, यू कैन सिंपली से दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which leader is leader is chosen by the people. Leader is chosen by the people. अब कैसे चूज किया जाएगा? थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन के माध्यम से आप क्या करेंगे? चूज करेंगे. उसे बेसिकली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर इज बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल. जहां पे एक लीडर को हम लोग क्या करते हैं? दैट इज बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बहुत सारे एग्जांपल हैं, यू नो, यूएस, इंडिया, ब्रिटेन. अब इवन द वर्ड डेमोक्रेसी इटसेल्फ इफ यू सी, तो डेमोक्रेसी इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स डेमोस प्लस क्रेशियर. Demos plus Kratia. Demos means people and Kratia means rule. So democracy is a form of government in which directly, we can't say, but indirectly people rule. Moving further, when we move further, we understand more. अब now the problem with democracy is that lot of countries say themselves that they are democratic countries. काफ़ी countries are more democratic कहती हैं. Even China is, China may call itself democratic, or different countries are saying democratic, but they are not. How can you differentiate that a country particularly is democratic or not? So to understand that this particular thing what we have, let's say that you have got a mobile, आपने मोबाइल अपने पास खरीदा. अब वो मोबाइल वही चीज़ है कि नहीं, डिफरेंट मॉडल है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं? उसके फीचर्स देख लेते हैं. उसी तरीके हम लोग क्या करेंगे? विल अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी के हम लोग क्या करेंगे? फीचर्स देखेंगे. तो पहला फीचर है, आपको देखना है किसी भी कंट्री में, आपको देखना है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है विच फॉर्म्स अ डिसीजन मेकिंग power, or which have got the power to decide on different matters. So that important thing is that they must be having the decision making power must be given to a person that is elected by the people. That a particular person must be elected by the people. आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहां पर क्या होगा? जैसे आप इंडिया एग्जांपल लीजिए, आप इस बात, यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, and prime minister is directly elected by the people. prime minister is a member of parliament. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या जीत कर. जैसे फॉर एग्जांपल इस समय पर हमारे देश में मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया. मिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो ही हैज़ बीन इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड वाराणसी. तो वाराणसी से वो ही हैज़ वन द इलेक्शन, एंड दैट्स वाई ही इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर. सो prime ministers are basically chosen by the people, and in India, ultimate authority for decision making different backgrounds and different matters vests with the prime minister. So that is feature of democracy. First पहला feature रखना. Second feature रखना है कि in this democracy, the election must be free and fair. Election must be done. फ्री और फेयर इलेक्शन, मतलब व्हाट डज इट मीन? फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सिंपली मतलब ये है कि जैसे कि इस समय पर अभी यूएस था, यूएस एग्जांपल लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में अभी क्या हुआ? इलेक्शन हो. यूनाइटेड स्टेट्स में अभी इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में देखा गया कि जो वहाँ पे जो बाइडेन वॉज द एक्स प्रेसिडेंट राइट नाउ, तो जो बाइडेन वॉज द प्रेसिडेंट. अब यूएसए क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या हुआ? देयर वॉज एन इलेक्शन बीन डन, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहते हैं, जो बाइडन को डिफीट कर दिया, वाह एंड क्या जो बाइडन मुस्कुराहट हु है। वाज इन द पावर, ही गॉट डिफीटेड, एंड डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट फॉर द यूएस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यू प्रेसिडेंट फॉर द यूएस. सो दिस we can say it is a democracy where a person who is in power have fair chances of losing. It does not mean that if somebody gets a power, they concentrate the power with themselves and continuously rule for a long period of time. It does not mean that.
Moving further, the next feature of democracy is that each citizen must have one vote and one value. अब इसका क्या मतलब है? अब आप सोचेंगे सर ये बहुत नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि द पीपल दोज हु आर अबव 18 years old, दोज हु आर अबव 18 years, दे कैन वोट। क्या कर सकते हैं? बेहतरीन, दे कैन वोट। सो हमारे यहाँ तो है सर, मैन और वुमेन दोनों वोट दे सकती हैं। मैन वुमेन बोथ कैन vote and vote. But the problem is that in lot of countries, even to take an example, Saudi Arabia, if you take the example of Saudi Arabia here, Saudi Arabia did not have the, they have not given rights to women. वुमेन के पास वहाँ पे राइट्स नहीं था एक समय पर 2014 तक, that they did not give right to women to vote in a democratic or vote in any kind of elections. So बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर, और इवन द फिजी इज वन कंट्री, फिजी इज वन कंट्री वेयर migrated Indians, did not have right to vote. Migrated Indians जिन्होंने बड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद माइग्रेट किया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए वन वोट वन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। किसी कंट्री समझना हो, समझिए कि क्या सभी को अधिकार है चुनने का कि नहीं चुनने का अधिकार है। जैसे कि अमेरिका था, यूएस था एक समय पर, तो ब्लैक पीपल जो थे उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो भी एक सब चीज़ें देखने समझने की चीज़ें। मूविंग फर्दर, द फोर्थ पॉइंट इज दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो उसका रूल होगा, द कंट्री दैट विल बी विच दे विल बी रूलिंग, दे विल बी रूलिंग विद इन लिमिट्स। दे कांट बिकम, अगर वो लिमिटलेस हो गए, अगर वो लिमिटलेस हो गया, लेट्स से दैट कोई कंट्री है जो कि क्या हो गई आपकी लिमिटलेस हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो डेमोक्रेटिक नहीं रह गई। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं रह गई? बिकॉज अगर वो बन गई, क्या बन गई? डिक्टेटरशिप। इफ सम कंट्री डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द पीपल, देन दैट पर्टिकुलर कंट्री बिकम्स डिक्टेटरशिप। वो कंट्री क्या हो गई आपकी? डिक्टेटरशिप हो गई। इसीलिए, और वो लिमिट कौन लगाएगा? कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब दैट कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी रिटन और अनरिटन, वो सिचुएशन डिफरेंट जगह की डिफरेंट डिफरेंट है। इट कुड बी रिटन और अनरिटन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक कंट्री है, इन आर कंट्री वी हैव गॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ब्रिटेन एक एग्जाम्पल है, ब्रिटेन डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद इटसेल्फ। सो अ कंट्री विल हैव कॉमन लॉ, और वहाँ पे सिटीजन right will always be one of the priority. This is, so when we talk about summary, so in this particular video, what you have learned the basic things about government, some forms of government and their power, their rules and different kind of things. So to summarize it, the first thing what you understood was the definition of democracy. You understood definition of government, what is government की definition आपने सीखी, forms of government आपने सीखे यहाँ पर, और फिर आपने क्या सीखा? यू हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने सीखी, और उसके बाद आपने सीखा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये एक बेसिक वीडियो थी जहाँ पर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए। व्हेन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मीटिंग यू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट some of the complex issues, for example, legislature, executive, judiciary, and different kind of topics from civics. So till that time, stay tuned and keep studying. Thank you.